Okay, so let's begin the show, sir. Just give me one moment. Okay. Uh, Good afternoon, friends. Thank you so much for joining us this beautiful afternoon. My name is Kanhaiya Jha, and I'm heading the Admission and Marketing Department for Three Educational Vertical of Bajaj Capital Limited. Share Gurukul is one of them, where we train students to become a stock market expert. So just to give you an understanding of what Share Gurukul is and what do we teach at Share Gurukul. Established in 2002, Share Gurukul is a 2 decades old share market education institute in New Delhi. As I said earlier, it's a part of Bajaj Capital Group. This is one of the oldest training institute, stock market training institute. Rather, I would say first institute who started teaching technical analysis in Delhi NCR. At CR Gurukul, we have trained more than 10,000 students across India. We have the best trainers who have decades of experience in the stock market. Coming back to our today's talk, webinar on 1 hour masterclass on intraday trading using Elliott Wave. Please join us to welcome Ashok Jain sir. He's a stock market trader, analyst, and coach. He's an engineer turned financial analyst and a stock investor. He has more than 45 years of experience as a trader, market analyst, and a stock market coach. He's a legendary stock market guru who forecasted Nifty level of below 8,000 while it was 12,500 in way back in uh, 2019. And vice versa, when Nifty was 7,500 levels, he gave a forecast that the market will go 13,500. साढ़े सात Uh, Ashok Jain sir has hello. Ashok Jain sir also heading research desks for some of the largest institutional and algo trading group. Please join us to welcome Ashok Jain sir. Over to you, sir. Good afternoon, guys. Pleasure meeting all of you. पहले तो एस्टैब्लिश कर ले मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ कि इंग्लिश बोलूँ English is the perfect language, sir. मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश में बात करूँगा. I can see a hand raised. Rajan का हाथ. Rajan, your hand is raised. You have any question? एक हाथ खड़ा है राजन का. Guys, it will be a pleasure to see you all. So please try coming onto the cameras. बहुत मुश्किल लगता है बिना कैमरा के स्क्रीन देख करके. ऐसे लगता है जैसे मैं दीवार को पढ़ा रहा हूँ. तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. All of you जो लोग कैमरा पे आ सकते हो, please do come on cameras. थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इलियट वेव के बारे में. इलियट वेव बहुत अलग से हटके है. इलियट वेव बहुत अलग से हटके टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसके अंदर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस की ज्यादा वेटेज नहीं होती है. ये अपने आप में एक कंप्लीट थ्योरी है और इसको ज्यादा करके लोग मार्केट को फोरकास्ट करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन बहुत सालों से मैं इलियट को एज अ ट्रेडिंग टूल यूज कर रहा हूँ. So this is in nutshell. This is what Elliott is all about. And ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता. जो भी इलियट जानता है उसने वो फोरकास्ट किए होंगे जो मैंने किए. तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मेरे स्टूडेंट्स भी ये करते रहते हैं और ये भी वो फोरकास्ट कर पाते हैं. तो इतना कुछ ऐसा इसके अंदर नहीं है. हाँ, सीखने में वक्त जरूर लगता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी.
सो बेसिकली इसे सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा, करीबन 3-4 महीने का वक्त लगेगा। मैं कोशिश करूंगा आज एक इंट्रोडक्शन दे पाऊँ कि इलियट वेव थ्योरी क्या होती है। शुरू करने से पहले किसी के कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है? मैं इलियट शुरू करने से पहले अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए। सागर, आपका हाथ खड़ा है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस सर, बिकॉज सर मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग करता हूँ, तो क्या ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा? मेरे हिसाब से तो रहेगा। एक बार आप नजर मारना तो आपको समझ में आएगा। इलियट वेव हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। मैं 1 घंटे के चार्ट पे इसलिए आज दिखाऊंगा क्योंकि डेटा कट करना आसान होता है। अगर मैं छोटे फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे डेटा कट करने में ज्यादा मुश्किल आती है। क्लियर हो गए सागर आप? मतलब सर मैं अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो क्या ये तो हो हो जाए? जाएगी बेटा, हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है, किसी और का कोई सवाल है? आप लोग में से कितने लोग मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो? थोड़ा सा मेरे लिए इजियर हो जाएगा समझना। एक छोटा सा पूल कर लेते हैं। अगर आप मार्केट में काम करते हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो तो आई लिखना, अगर ट्रेडर हो तो टी लिखना, और नए हो तो न्यू लिख देना। कन्हैया, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बेटा? मिक्स रिस्पॉन्स है सर। नए तो कम दिख रहे हैं। काफी लोग ट्रेडिंग और करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं, जिस पूल के हिसाब से तो ये दिख रहा है। चलिए, आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब है कि बेसिकली मुझे ज़्यादा बेसिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा ही इलियट वेव पे जा रहा हूँ। कन्हैया, कैन यू शेयर द पीपीटी प्लीज? श्योर सर, जस्ट अ मोमेंट। Is my screen visible, sir? या स्लाइड शो पे चले जा बेटा। Yes, Harpreet, it is always a part of Iliad. आगे चल, next slide. This is what I was trying to say कि इलियट को ज्यादा करके मार्केट की डायरेक्शन को फोरकास्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसे मैं एक तरीके से ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। उसके अंदर बहुत सारी एडेप्शंस करनी पड़ी थी, बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती हैं। एक आइडियल क्लासिक इलियट वेव आपको इंट्राडे में बहुत मुश्किल से मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ एक वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन। रिट्रेसमेंट जो होती है ये फिबोनाची नंबर्स पे होती है। फिबोनाची नंबर्स के बेस नंबर्स होते हैं 1, 1,
फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 एंड सो ऑन। ये एक फिबोनाची सीरीज होती है, साइकिल्स होते हैं। इनके अपने आपस में एक इंटरैक्शंस होते हैं जो यूजुअली जिन्हें हम 61 और 1.64 मान के चलते हैं। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है, ये उतने परसेंटेजेस होते हैं। इसको हम यूज करते हैं जब मार्केट करेक्शंस में आती हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, 38%, 50%, 61.4। इसमें वैल्यूज थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो उनमें ये सेकंड डेसिमल तक जाती हैं। अब कई बार क्या होता है, फिबोनाची लेवल एक्चुअली 38% का बहुत एग्जैक्ट माना जाता है, लेकिन फॉर हम आवर ट्रेडिंग पर्पसेस हम 33% को भी एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल मान लेते हैं। ये आइडियल फिबोनाची लेवल नहीं है, लेकिन ये 1/3 ऑफ द मार्केट करेक्ट कर जाती है, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ऐसे अगर थ्योरेटिकली आइडियली स्पीकिंग 50% की लेवल भी फिबोनाची की लेवल नहीं मानी जाती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, ये 0 से 1 तक मार्केट ऊपर जाती है, 1 से 2 करेक्ट करती है, फिर जब 1 कट करती है तो ये थर्ड वेव बनाने जाती है, फिर ये करेक्शन करके फोर्थ पे आती है, और फिर जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तो इसे हम लास्ट लेग ऑफ द मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम सेटअप सेल के लिए होता है। जब मार्केट नीचे आती है तो 1 2 3 4 एंड लास्ट लेग डाउन। नेक्स्ट प्लीज। नाउ अंडरस्टैंड दिस, में तो समझ में आता है कि इडियट एक सेशन के अंदर किसी को अगर मैं बोलूं कि आप इडियट के एक्सपर्ट हो गए तो वो गलत होगा। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत होती है। बट ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आज आपने इडियट का थोड़ा सा भी आइडिया ले लिया तो अगला सेमिनार मैं हार्मोनिक पैटर्न्स पे करूंगा, जो फिर बहुत आसान होगा, उसे कोई भी कर सकता है। वो किसी भी जगह आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, लेकिन उनको ट्रेड करने के लिए पहले एक बेसिक इलियट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई विल मूव ऑन टू द चार्ट गाइस। Should I stop sharing, sir? हाँ बेटा। ओके गाइस, ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। अब इसमें आप नीचे डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डॉट्स मार्केट का ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन बताते हैं। इस वक्त ये मार्केट जब नीचे डॉट्स आ गए तो ओवरसोल्ड कंडीशन पे आ गई है, मतलब मुझे फर्स्ट 0 का पॉइंट मिल गया है। इलियट के अंदर 0 का पॉइंट ढूंढना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैंने ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है। गाइस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस हियर एट दिस स्टेज? किसी को कोई सवाल है इस स्टेज पे? तो लेट इट सेट अप इन द वे सर कि पहले हम अपना जो आपका है चार्ट वगैरह दिखाते हैं, देन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड वहां पे हम करेंगे। ओके, ये अब हम 17 मार्च पे आ गए। मार्केट ने 0 बनाया, मार्केट ने एक टॉप बना के एक करेक्शन किया है। इस पॉइंट को मैं 1 लिख रहा हूं। आज मार्केट ने 1 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन कल अगर हाई काट के मार्केट ऊपर जाएगी तब मुझे 2 मिलेगा, नहीं तो मुझे 2 नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
क्लोजिंग आज 1 के ऊपर आ गई है, लेकिन कल इस लेवल का हाई कटना बहुत जरूरी है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ 2। मार्केट ने हाई नहीं काटा था, तो अभी तक हमारा 1 कंफर्म नहीं हुआ है, हम मतलब हमारा 2 कंफर्म नहीं हुआ। हमारा 2 कंफर्म होने के लिए मार्केट को 1 के ऊपर क्लोजिंग देके आगे जाना है। मार्केट ने 1 के ऊपर क्लोजिंग दे दी और ऊपर चली गई है, हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा, नीचे का पॉइंट हमारा 2 हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मार्केट ने 1 से 2 में कितना रिट्रेस किया है। रिट्रेसमेंट का मतलब है प्रॉफिट बुकिंग आना बाजार में, जो बहुत हेल्दी होती है। हमें मिनिमम रिट्रेसमेंट 33% चाहिए होती है 1 से 2 के बीच में, 0 से 1 की। इस केस में 61 हो गई है। जितनी भी रिट्रेसमेंट 33 के ऊपर होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। 33 इज अ वेरी बेसिक लेवल। अब 61% रिट्रेसमेंट का मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, ये फैक्चुअली गलत होता है। ये बात समझिएगा कि जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है। समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर ये 61% तक नीचे आ गई तो शायद हम ये कह सकते हैं कि 61% लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। इसका मतलब है जब तक हम 2 पे आए तो काफी नए बायर्स आ चुके थे। ये जो फेज होता है 0 से 1 और 2 का, इस फेज को हम एक्यूमुलेशन का फेज कहते हैं। एक्यूमुलेशन के फेज में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर starts entering the market. ले इन्वेस्टर इज ऑलवेज स्कर्ड कि अब मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। ये वो लेवल होती है जहाँ पे नॉलेजेबल और स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं। 1, 2 हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि हमारा थर्ड का टारगेट क्या है। 0 से 1, इसे मैंने 2 पे छोड़ दिया, ये 161 दिख रहा है। जब तक मार्केट 161 हिट नहीं करेगी तब तक 0 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम 1 के ऊपर बाय कर चुके हैं मार्केट को। अब मैं आगे चल रहा हूं। मार्केट चल गई है ऊपर, ये लाल रंग के डॉट्स आने लग गए, मतलब ये बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, एक डिप ले सकती है। इस वक्त आप नोटिस करें मार्केट यहाँ से 1 और 2 की टेरिटरी में आ गई है। एक बार मार्केट अगर 1 के ऊपर निकल गई और उसके बाद वो नीचे आती है तो हमारा 1, 2 गलत हो जाता है। ये 1 कट के यहाँ पे आ गया, लेकिन एक चीज याद रखिए, हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा है, हमारी पोजीशन आज भी इंटैक्ट है क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा 0 का। मार्केट नीचे आ गई है। अब मेरे को रिट्रेसमेंट लेवल्स रीचेक करने पड़ेंगे, मेरे सारे लेवल्स चेंज हो गए हुए हैं।
ये 2 पहले आपको दिखने लग गया है, लेकिन ये 2 आएगा जब 1 के ऊपर बाजार आ जाएगा। तो अभी ये 2 भी हमें मिला नहीं है। मार्केट 1 के ऊपर चली गई है, मेरा 2 यहाँ पे आ गया है। अब मुझे फिर से रिट्रेसमेंट के लेवल्स चेक करने हैं। हमारा 0 कभी भी चेंज नहीं होता। मार्केट ने 60% रिट्रेस किया है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके बाद अब मार्केट एक्सपेंशन में जो हमारा टारगेट है वहां जाएगी 1 से 2। 161 इसकी मिनिमम लेवल है। अगर ये 161 नहीं आती तब तक हम 0 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बैठेंगे। ऊपर ही जा रही है। ये मार्केट ने 161 के लेवल को क्रॉस कर दिया है, दिख रहा है। यहां से अब हम मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ही 3 का मिनिमम टारगेट अचीव हो जाता है तब हम मार्केट को 4 बनाने के लिए नीचे आना है। अब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमें एक रूल देखना है। हमारा 1 से 2 का जो रिट्रेसमेंट था वो 60% का था। 3 से 4 के लिए मार्केट जब भी करेक्ट करेगी उसकी हम वैल्यू का फोरकास्ट ले सकते हैं। अगर 1 से 2 60% था तो इक्वेशन है, इफ 1 से 2 इज इक्वल टू x, 3 to 4 is y, then x plus y should be equal to 90 to 120. So now we know that market since has done 60% in case of 1 and 2, तो अब 3 और 4 के लिए वो 30 से 60% तक करेक्ट करनी चाहिए। अगर वो उसने 30 से 60% तक करेक्शन नहीं दी तब ये मार्केट ने 3 कंप्लीट नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे भूलिएगा मत।
ये मार्केट ने करेक्शन शुरू कर दिया है करता, इसका मतलब ये शायद थीम की फॉर्मेशन होगी शुरू हो गई है। लेकिन थीम की कंफर्मेशन क्या है? थीम की कंफर्मेशन ये है कि 2 से 3 जब मार्केट करेक्ट करेगी तो उसे 30 से 60% के बीच में आना है, बिटवीन 2 एंड 3 जितना वो ऊपर गई। मैंने 2 लगा दिया है 2 से 3 के बीच में। अभी तक 3 का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू कम से कम 30% चाहिए। मैंने 30% की लाइन डाल दी है। मार्केट ऊपर भाग गई, इसका मतलब कि इसने 30% रिट्रेसमेंट नहीं किया था तो ये 3 नहीं बना। अभी भी हम थर्ड वेव की वेट कर रहे हैं। और ऊपर जाती जा रही है। शायद ये करेक्शन आनी शुरू हो गई है। अब मेरी लेवल ये है, इस लेवल तक आना जरूरी है 3 के लिए। मार्केट करेक्ट करके नीचे गिर गई है। फिर ऊपर चली गई, इसका मतलब अभी भी 3 नहीं मिला है। और ऊपर गई, करेक्शन आने लग गई है। मैं इसे और ऊपर कर देता हूँ। थ्री की कंफर्मेशन हमें मिलेगी जब हम इस लाइन पे आएंगे। मार्केट यही घूम रही है। और ऊपर चली गई, और ऊपर जा रही है। करेक्शन आ रही है।
ये दिख रही है आपको? अभी तक हमको 3 की कंफर्मेशन नहीं मिली है। और ऊपर भाग गई, अभी तक 3 नहीं आया है। फिर से करेक्शन आने लग गई। अभी भी 3 नहीं आया। अब शायद हम 3 के आसपास पहुंच गए हैं। इसका मतलब है अब ये मार्केट इस वक्त जो करेक्शन ले रही है, ये शायद थर्ड वेव है और इसकी सपोर्ट बैंक निफ्टी की यहाँ आ रही है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स आ गए हैं। ये मार्केट की जो करेक्शन है वो इस लेवल के आसपास स्टॉप कर सकती है। ये ऊपर का लेवल है और ये नीचे का लेवल। ये वाला जो लेवल है ये करीबन 44,500 के आसपास अगर मार्केट आ गई तो उसने मिनिमम रिट्रेसमेंट की कंडीशन पूरी कर दी और उसके बाद वो लास्ट लेग ऊपर की तरफ लेके जाएगी। मैं ये मान रहा हूं कि ये लेवल हिट हो गया है। तो 5th का लेवल क्या आ रहा है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। अगर रिट्रेसमेंट पूरी कर लेगी तो बैंक निफ्टी का टारगेट इस वक्त 49,000 के आसपास निकल के आ रहा है।
ये क्लियर हो गया सबको? अब किसी के कोई सवाल हैं तो पूछिए। Anyone has any questions now? Sir, Hello? some Yeah. of our participants could not understand this because this is something that is those who are already in the market can relate to this. No, I'll try explaining it to you again. Kanhaiya, can you share the PPT? Just- Kanhaiya? Yes, sir. Just a moment. Okay, just come to the fourth slide जहाँ पे buy बना हुआ है. Okay, guys, understand this, beta. 0 is the bottom. From here, the first level is the first bounce which market takes. Are we clear till here? जिससे सवाल पूछा था ये clear हो गया बेटा? Yes, sir. अब उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू किया. करेक्शन लेने का मतलब है मार्केट नीचे आने लग गई. अब अगर आप इलियट को नहीं समझते हैं तो रिट्रेसमेंट जब ज्यादा नहीं जानते, सट्टा मारा, वो 0 से 1 के बीच में होते हैं. उसके बाद 1 से 2 जब करेक्शन आती है तो वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते हैं. और नॉलेजेबल या स्मार्ट इन्वेस्टर 1 से 2 की में मार्केट में एंटर करते हैं. इस फेज को हम एक्यूमुलेशन का फेज कहते हैं. आर यू क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. Now, once 1 is taken out, that means market has gone in a clear buy. It's a buy which is in trend. Are we clear? अब उस 3 का हमारे पास मिनिमम लेवल होता है. 1 से 2 मार्केट जितना गिरी है उसका 161% मिनिमम ऊपर जाएगी, तब हमें थर्ड का लेवल मिलता है. जब थर्ड का लेवल मिलता है, एक्चुअली थर्ड का लेवल वो होता है जहां पे बहुत ज्यादा मार्केट में मोमेंटम आ जाता है और मार्केट बहुत तेजी से भागती है और काफी आगे जाती है. ठीक है? ओके. सो नाउ once we hit 3 के बाद 4 की करेक्शन आती है और लास्ट लेग के लिए ऊपर जाती है. अब 3 की कंफर्मेशन आने के लिए कंडीशन बहुत जरूरी है. 1 से 2 की जितनी रिट्रेसमेंट हुई है, 3 और 4 की रिट्रेसमेंट जोड़ के टोटल 90 to 120 आता है. अगर मुझे 1 से 2 60% रिट्रेसमेंट मिली है तो हमारी जो रिट्रेसमेंट आनी है 3 से 4 की वो 30 से 60% आएगी. ये क्लियर हो गया बेटा? That means 3 to 4 is a forecasted level. Is this clear? Guys, respond. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. 1 to 2 अगर सर दोबारा एक दफा बता देंगे ये जो है हाँ. आपका 2 से 3 का जो है कैसे वो कर रहे हैं आप? इसको हम बेटा प्रोजेक्शन लगाते हैं. 0 से 1 पे ले जाके 2 पे छोड़ देते हैं. इसे फिबोनाची प्रोजेक्शन कहते हैं. वो वहां पे लेवल दे देता है, जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया था. चार्ट पे लगा के दिखाऊं क्या? जी सर, आप चार्ट पे सर एक दफा दिखा दीजिए. 0 से जैसे हम 1 पे जैसे हमने फिबो लगा दिया है और फिर जैसे जो है आपका जो है रिट्रेसमेंट 2 पे जो है बाय हो रहा है वहां पे. 2 फिर पे जो जैसे वो एक मिनट फिर से समझ. 2 पे बाय नहीं आएगा. इलियट में 1 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद बाय आएगा. ठीक है? ये लेवल है. ये यूज आपको दिख रहा है. पी दबा रहा हूं. ये मैंने पी दबाया, 0 से 1 पे रखा और इसे 2 पे लाके छोड़ दिया तो ये लेवल्स आने लग जाएंगे. दिखने लग गए? Yes, sir. ये लेवल्स आते हैं. इन लेवल्स को हम देखते हैं.
क्लियर हो गए? सर ये 1 मिनट पूरा चार्ट क्लियर कर देंगे, जो लाइनें इतनी आ रही हैं उसके बाद जो है सिर्फ खाली चार्ट के ऊपर में दिखाई काफी लाइनें आ रही हैं, तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, विजुअल क्लियर नहीं हो रहा है सर। हाँ, कैसे मैं आपने फिर वो लगवाया इस पे? अच्छा 1 मिनट रुक बेटा। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ध्यान से देखो तो ये बाय और सेल जोन दिखा रही हैं। अब दिखने लग गया, 0 1 2 दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जी, जी, मैंने सर। प्रोजेक्शन डाला 0 से 1 पे और इसे 2 पे लाके छोड़ दिया, तो ये लेवल आने लग गए। कितने लग गए? 161 का मिनिमम लेवल था, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाती गई है, दिख रही है? हाँ सर। अब इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, कहां से हमें 3 की कंफर्मेशन मिलती है? जब ये अपनी पिछली सपोर्ट काट देगी तब मार्केट नीचे करेक्शन में जाती है। क्लियर हुए? यहाँ पे देखो, एक मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूं। जस्ट अ मिनट, माय वाइफ इज कॉलिंग, शी इज आउट ऑफ टाउन। मैं क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं। ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट दिस, ये 2 से एक मेरी ट्रेंड लाइन बन रही है, दिख रही है आपको? अब यहाँ पे देखो आप, एक ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई है, इसको मैं 0 लिख रहा हूं। यहाँ पे करेक्शन आई थी, 0 मैंने इसे लिख दिया। अब इसके बाद मार्केट ऊपर यहां तक गई है, जब तक 0 नहीं काटती है तब तक हमारी वो लेवल नहीं चेंज होती है, तब तक मार्केट सेल में नहीं गई। क्लियर हो गए? ओके सर। अब इसके बाद क्या हुआ? मार्केट और ऊपर चली गई। इसका मतलब है कि ये मेरा जो 0 मैंने मार्क किया, ये मेरा 0 अब शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ये 0 यहाँ पे आ गया। अब जब तक ये 0 नहीं कटेगा तब तक मार्केट करेक्शन में नहीं आएगी। क्लियर हो गए? हाँ सर। अब इसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई तो 0 यहाँ आ गया। क्लियर है? और 1 यहाँ आ गया, दिख रहा है? इसके बाद मार्केट ने डिप लिया, 0 नहीं काटा लेकिन ऊपर चली गई, तो 0 फिर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब जो ही ये 0 कटा तो करेक्शन शुरू हो गई। क्लियर हुए? सो दैट मीन्स हम बॉटम्स को ऊपर लेके जाते हैं। एक बेसिक रूल क्या है? जब तक मार्केट हायर हाइज बनाती है तब तक वो बाय में है, और जब वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है तब सेल के अंदर चल रही है। क्लियर हो गए? यहाँ पे देखो, कोई हाई नहीं कट रहा है, सब पिछले हाई नीचे नीचे बनते जा रहे हैं, मतलब मार्केट सेल में है। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई लो नहीं कट रहा था, मार्केट मतलब बाय में है। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गए? ओके, नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस बेटा? कोई सवाल है पूछने के लिए? सर एक बात पूछनी है। हाँ, जब मार्केट सर ओवरसोल्ड हो जाती है उस समय हम बाय के लिए जाने की कोशिश करते हैं, 0 पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल। जब 0 बना 1 बना 2 बना रिट्रेसमेंट के साथ, और जैसे ही उसने 1 को काटा हमने बाय ले लिया। लेकिन अगर वो मार्केट घूम के 0 काटती है तो क्या हमें नीचे सेल के लिए बैठना है, या फिर जब तक ओवरसोल्ड है तो हमें ऊपर की डायरेक्शन पकड़नी है, या हमें नीचे छोड़ के चलें स्ट्रेट? नीचे छोड़ के चलेंगे, ऊपर ही चलेंगे। जी जी जी, बस यही पूछना सर। और सर हाँ। एक चीज और है सर, हाँ ये बेटा। ये 161 पे निकल जाएं या फिर, ना ना क्योंकि ना, सर ना। 3 जब निकलना। तक पिछला लो नहीं काटती तब तक चलते रहना है। ओके
ठीक है गॉट इट? ओके क्लियर हो गए? सर, हमें इस क्लास की वीडियो मिल सकती है? हाँ, वो तो बेटा आपको एडमिन वाले बताएंगे। ओके सर। Kanhaiya, can you take over? I'm just going to the washroom and coming. ओके सर, यस, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा बाय मंडे। ये शेयर गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग इसका लिंक सबको मेल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। कन्हैया साहब, इसमें जो है मुझे एक चीज पूछनी थी। ये जो सर जो है बार बार जैसे जो है लेवल जो है चेंज हो रहे थे, अपर लेवल चेंज हो रहे थे, सर जो है फीवो जो है उसके जो है रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो चेंज करके ऊपर उसको शिफ्ट कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे वो जानना चाह रहा था। और उससे उससे जो है वो 30% फिर बाद में कैसे आया, वो चीज समझना चाह रहे हैं। ये चीज आपको जैन सर ही बता पाएंगे, क्योंकि इलियट का मुझे भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। सर क्लास अभी चल रही है खत्म हो चुकी है? हाँ, हमारी क्लासेस होती है, सैटरडे संडे क्लासेस होती है। नहीं, फिलहाल 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 हाँ, फिलहाल चल रही है। ओके तो बाय द टाइम जैन सर आते हैं, मैं आपको शेयर गुरुकुल के बारे में जो हम कोर्स ऑफर करते हैं वो बता देता हूँ। So in CR Gurukul, we provide exclusive stock market courses. So when I say stock market, we start from very basic, meaning to say, even if you are a complete beginner who doesn't know what is stock, what is the stock market, fair enough. All we require is your inclination towards learning and gradually improving your education about stock market. We also need your eagerness to make money from the stock market. Now coming to the course, the entire technical analysis course is divided into 3 modules. Our first module is basic of stock market and advanced derivatives. As it is very clear with its name only, in this module we start teaching from very basic of a stock market, tell you what is a stock, what is a stock market, what is capital market, what is margin, what is exchanges, how exchange operates, how trading happens, how settlements happen, how clearing system happens. Everything we teach you to understand the basic knowledge of the stock market. Sometimes we people who have been trading for 5 to 6 years but don't know these basic things. So it is very important to learn that, understand these things about the stock market. So this is a basic thing. It's a part of the basic program. So our first module is divided into 2 modules. First, in the first module, start from basic, and then we go on to the derivative section. We start teaching with the concept as what is derivative, types of derivative, what is future, and what is options, what is call put. You learn trading of in the money, out the money, at the money, then different types of derivative strategies like protective call, protective put, covered call, covered put, straddle, stangle, bull call spread, bear call spread, calendar spread. These are so there is no use of learning derivative unless you cannot make derivative trading strategy. You will learn how you can make your own derivative trading strategy. You also learn the complete Greeks. What is delta, what is gamma, what is theta, what is vega, what is rho. You learn in depth about open interest concept so that you can understand what is OI data, how to use this data for your trading setup. This is what you learn in the module 1. Now coming to the module 2. It begins from very basic introduction of what is technical analysis, how does technical analysis function, what are the basic principle of technical analysis, basic tools and concepts that use technical analysis, couple of theories like Dow theory, Gann theory as well.
We also teach you the market hypothesis. In this level, you learn live charting, how to draw charts, how to read patterns, how to find support resistance. You learn candlestick, 20 to 30 types of chart pattern you learn in the module, gap theory, MACD, moving average, how to draw trend lines, how to do price forecasting, all those things you learn in the module 2. Now coming to the module 3, that is called technical analysis advanced. So where you left in the module 2, then we move on to the technical analysis professional part, meaning to say the larger focus would be on the Elliott wave. The larger focus would be on the Elliott wave. We will teach you the Fibonacci retracement, the impact of Fibonacci series, how do you analyze trend, how do you plan entry exit points. Then it would also have the practical element of doing technical analysis. You also learn the volatility as a tool for trading. Here in this level, Jan sir himself mentoring you and guiding you. So he will be teaching you in the level module 3. Coming to the most beautiful section of this program, Ashok Jan sir give you 2 zero risk trading strategy, which you can directly apply in your trading. Second, you will get 10 hours classes in the live market. This is the curriculum, Elliott wave, harmonic pattern. These are all the things you will be learning in the module 3. So this Ashok Jain sir and CS Sachin Agarwal, these 2 people are our faculty member. Ashok sir, you already know the Ashok sir. He's a well-known face in the stock market. He has more than 45 years of experience in the stock market. Similarly, CS Sachin sir, he's an award-winning market analyst and trainer. He has more than 2 decades of experience in the stock market. He's also a 3 times award-winning faculty from Bombay Stock Exchange Institute. These are the fees of our program, module-wise fees. The first module is stock market and advanced derivative. The duration of this program is 24 hours. The program fee is 12,500 rupees. The module 2, technical analysis advanced. The duration of the program is 30 hours and the program fee is 12,500. The technical analysis professional part, that's the program duration is 30 hours and the program fee is 15,000 rupees. So altogether, when we combine it, the cost is 40,000 rupees. So when we bundle, when someone go to study the complete stock market program, that is, it will cost you, usually it costs 34,900. So since it's Independence Day special week, we are giving an additional 15% discount on the program fee. So after deducting the 15% discount, it will come down to 29,665 rupees. You can also enroll by just paying 10,000 rupees, and the balance fee you can pay in the zero interest EMI through the NBFC. We have a tie-up with the NBFC through which you can avail the loan at 0% interest. This is a number. You can call on this number 9711-456-906. My team is there. They will help you, guide you, or if you have any question related to the program or anything, they will definitely help you on this. Okay, guys, can I take over? Sure, sir. हाँ बेटा, किसी को कोई सवाल है तो आप पूछिए. Anyone has any questions, beta, on Elliott wave? किसी का कोई सवाल है? There was. Okay, Amit, can you be a bit vocal about what you are saying? Amiji, you can unmute yourself and you can ask your question from the answer. किसी का कोई सवाल नहीं है क्या? No, sir. I cannot see any question.
सर एक बात पूछनी है। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अगर हम इंट्राडे में इलियट यूज करते हैं तो क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मान लो मैंने हाँ बिल्कुल, 12 एक मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन जाएगी। दिक्कत ये आती है कि जब मैं उसे हिस्टोरिकल डेटा को कट करता हूँ ना, तो वो कट करना मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, मेरी बात, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग था कि मान हाँ लो अगर ओवरसोल्ड बाजार लेट एक होता है, मिनट, मतलब 1 बजे। मैं आपको ना एक क्लियर क्लैरिटी दे देता हूँ, रुको। ये चार्ट है, इसे मैं 5 मिनट का चार्ट कर दे रहा हूँ, जी, दिखने लग गया। बिल्कुल। अब मैं, अगर आप इसको ऐसे देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे भी, ये देखो इलियट चल रही है, दिख रही है। बिल्कुल सर, दिख रही है। अब दिक्कत ये है कि ओवरसोल्ड ओवर बॉट को ढूंढने के लिए आपको कोई टूल तो लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल लगाना पड़ेगा सर। अब मैं आपको टूल जो लगाया हुआ था वो दिखा रहा हूँ। ये टूल मेरा ही डेवलप किया हुआ है, ठीक है। ये टूल है। अब आप इस टूल को ध्यान से देखो। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, मैं अभी वो स्क्रीन को ही एडजस्ट कर रहा हूँ, वो हैंग कर रही है। Sir, Amit ji is asking in the chat box, how much should be retracement of wave 4? How did you arrive at 30 to 60% retracement? I told him already that total of 1 and 2 plus 3 and 4 should be between 90 to 120. So if 1 and 2 was 60, you know how much would be the fourth wave. Are we clear? Amit ji, are you clear now? No, sir. Yes or no? No. Okay. Understand the equation. 1 to 2 is x. Okay. 1 to 2 is x, 3 to 4 is y. So x plus y is equal to 90 to 120. Is that clear? So once you know the value of x, y can be found out. You get me? Amit ji, respond kar do. Okay, someone was asking for 5-minute Elliott, right? Can you see this better? जी, यहाँ पे अगर आप 5 मिनट की इलियट देखोगे तो देख रहे हो कितनी तेजी से बदल रही है।
दिख रही है? कैन यू सी बिल्कुल दिस? सर, बिल्कुल ठीक सर। है, तो जितने आप शॉर्टर फ्रेम में जाओगे इलियट उतनी तेजी से बदलेगी। बेसिक आइडिया क्या होता है, आप 1 घंटे के चार्ट पे बाई में चली गई, ठीक है, जी अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय कर सकते हो। क्लियर हुए? ओके सर, मेरा बस क्वेश्चन ये था सर कि ना, अगर मान लो हमें ओवर सोल्ड दोपहर को मिलता है 2 बजे के आसपास, तो मार्केट तो 1.5 घंटे बाद बंद हो जानी है, और फिर हम अगले दिन बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या वो चीज, या हमें सुबह ही ट्रेड लेने पड़ेंगे सर इस चीज को लेके, अगर ये हमें एक इंट्राडे करना है? इलियट, अगर इलियट हम करेंगे तो इलियट में हम पोजीशन लेके ही बैठ जाते हैं, चाहे वो समझ सवा गया, दो समझ गया, बजे भी मिले। मैं समझ गया, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था सर। हाँ, मतलब इलियट की ब्यूटी ये है कि वो आपको आगे का रास्ता दिखा देती है। अब बेस्ट तरीका होता है इलियट को ट्रेड करने का, हायर टाइम फ्रेम पे इलियट देख के लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेगी। क्लियर हुए? सर आपके हिसाब से सर कौन से 2 फ्रेम्स अच्छे मैच करेंगे? मैं ज्यादा करके आधे घंटे के चार्ट पे काम करता हूँ बेटा, डेली और आधे घंटे के चार्ट पे, डेली वाला आधा घंटा, ठीक है। क्योंकि इलियट के अंदर आप पोजीशन काटते नहीं हो, आप फिफ्थ वेव तक पूरा बैठते हो। ठीक है, हम्म, समझ गया। अब नाउ इश्यूज आर, यू नो व्हाट the problem is, Iliad is difficult to understand and it takes time to teach you Iliad. Iliad में मैं एक सेशन के अंदर आपको एक शायद इंट्रोडक्शन मिली है कि Iliad क्या होती है और क्या कर सकती है। क्लियर हुए? ये मैंने पीपीटी में भी लिखा था कि इलियट को ट्रेड करने के लिए सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हाँ, जो अगला सेमिनार मैं करूंगा उसके अंदर मैं आपके साथ हार्मोनिक पैटर्न्स करूंगा जो इलियट से डिराइव्ड है, वो ट्रेडिंग टूल्स हैं। क्लियर हुए गाइस? समवन रिस्पॉन्ड प्लीज। Yes, sir. ठीक है, जी तो सर। बेसिकली इफ आई से कि अगर आज मैंने आपको इलियट का एक ओवरव्यू दिया है, दिस ओवरव्यू इज इनसफिशिएंट। एक चीज आप सोचो, जिस चीज को पढ़ाने में मुझे कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, वो मैं 1.5 घंटे में कैसे सिखा सकता हूँ? ठीक बात है। ठीक है, तो इसे सीखने के लिए तो ज्वाइन ही करना पड़ेगा बेटा, और कोई मेरे पास तरीका नहीं है इसको बताने का। हाँ, लेकिन एक चीज समझ लो, अगर आप इलियट जानते हो तो आपको एक चीज आ जाएगी। आप जब टूल्स लगा करके ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक तरीके से गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आ गई, लेकिन रास्ता नहीं पता होता। उस रास्ते को पता करने के लिए इलियट लेते हैं। अब आप एक बात समझो, अभी मार्केट करेक्ट कर रही है ना? कितने लोगों को लगता है कि ये मार्केट नीचे घुस जाएगी? आप लोग मार्केट में काम करते हो। सर जब भी तुक्का लगाते हैं गलती होता है। अब एक बात समझ बेटा, हमें पता है ये फोर्थ वेव बनाने नीचे आ रही है, मतलब इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स। समझ में आया? एक बार बहुत टर्मिनोलॉजी यूज होती है, डिप पे खरीदो, ऊपर जाने पे बेचो। तो वो मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, बुल या बियर है, ये इलियट के अलावा और कोई नहीं बता पाएगा। क्लियर हुए गाइस? आर वी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, कोई जवाब दे दो भाई, चुप करके मत बैठो यार। सर टॉपिक मुश्किल है ना, इसलिए जी भी बोल पा रहे हैं। नहीं, बात करो ना मेरे साथ, तो समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बात ही नहीं करोगे तो मुझे तो लगेगा सही बात सबको है। सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए तो बार अभी बार तक क्लियर पूछ है। रहा हूं आपकी, कुछ क्लैरिटी हुई, कुछ क्लैरिटी और चाहिए तो पूछो।
चलो गाइस, किसी के कोई सवाल नहीं है तो कन्हैया, कैन बी वाइंड अप? The one question I can see is how much should be wave 5? वेव Again, 5 इज 0 से 3 मेजर करके 4 पे बॉटम लगा दिया। 4 के बॉटम पे डालने के बाद 51 to 61 अगर एक्सटेंशन में नहीं गई तो, अगर वो एक्सटेंशन में चली गई तो एवरी 4 विल बिकम अ न्यू 0। सर आप कह रहे हैं 0 से लेके 3 तक का 61%? हाँ, 51 to 61% is a possible target. It can always overshoot it. That means then every time a 4 is formed, it is considered a new 0 and again the wave count is started. Got it? मतलब जो 0 नीचे लिया आता है, हर 4 को हम 0 बना लेते हैं। क्लियर हो गए? ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, समझाने में टाइम लगेगा। नहीं सर, मतलब सर 5 का हाई इस बात पे डिपेंड करेगा कि 4 कितना डिप में आया है। एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है बेटा। आपने पढ़ा हुआ है क्या इलियट पहले? गुरुजी पढ़ा था, लेकिन दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बिना ना काम चला नहीं मेरा। विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ विकास, इलियट के बिना कुछ होगा ही नहीं। नहीं सर, एक्चुअल में नहीं चला क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स है सब लैगिंग है। मैंने 5 साल हो गए सर ट्रेडिंग करते हुए, मैंने ये देख लिया कि मुझे नहीं नजर आया कुछ भी। चाहे कोई भी इंडिकेटर लगा लो, मैंने कम से कम 50-100 तरह के इंडिकेटर्स यूज कर लिए, हर चीज करके देखी, लेकिन जो तरीका मुझे लगता है कि इलियट कर सकती है वो शायद भी कोई कर पाए इसके अलावा, क्योंकि यही है वो जो पहले ही बता देगा। हाँ, यही और कुछ एक नहीं बता टूल है जो बता पाएगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके हिसाब से हम सपोर्ट जोन के अंदर आ गए हैं। अब मार्केट कभी भी बाउंस ले सकती है। बैंक निफ्टी, ठीक है गाइस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस नाउ? किसी और को कोई सवाल है? चलो कन्हैया, कैन वी वाइंड अप? Yes sir. So okay guys, it was a pleasure being with all of you and I would love to meet you in classrooms. So goodbye for now. Okay sir, thank you so much, thank you everyone. Thank you sir.